بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج میں آپ کے ساتھ صلح حدیبیہ کے موقع پر پیش آنے والے دلچسپ واقعات شیئر کروں گی اور یہ بتاؤں گی کہ صلح حدیبیہ کے معاہدے کی شرائط کیا تھیں اور اس معاہدے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ غزوہ خندق کے موقع پر جب ابو سفیان اپنا لشکر لے کر واپس چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی فرما دی تھی کہ اے مسلمانوں، اب مشرکین عرب تم پر حملہ نہیں کریں گے، ان کی طاقت اب ٹوٹ گئی ہے، اب تم ان پر چڑھائی کرو گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سچ ثابت ہوئی کہ 5 ہجری میں غزوہ خندق ہوا اور 6 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب کے ذریعے دکھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ عمرہ کے لیے تشریف لے گئے ہیں، کوئی قربانی کر رہا ہے، کوئی حلق یعنی کہ سر منڈوا رہا ہے۔ انبیاء کا خواب تو ویسے ہی وہی الہی ہوتا ہے، جیسا کہ سورۃ الصافات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، وہی الہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ عمرہ کرنا ہے۔ یہ پہلا عمرہ تھا کہ جس میں قربانی کا جانور بھی ساتھ لے جایا گیا، جبکہ قربانی کا جانور حج قرات میں ساتھ لے کر جایا جاتا ہے، یعنی عمرے کے لیے بھی جانور ساتھ لے جایا جا سکتا ہے، اور ساتھ میں بند اسلحہ بھی لے جایا گیا، اس ڈر سے کہ کہیں راستے میں کوئی حملہ نہ کر دے۔ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ 1400 اصحاب اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 1500 اصحاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عمرے کے لیے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب مشرکین عرب کو وہاں یہ اطلاع پہنچ گئی تو وہاں کھلبلی مچ گئی کہ یہ عمرے کے بہانے ہم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو انہوں نے خالد ابن ولید کو اور ایک اور شخص کو جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کو جاسوسی کرنے کے لیے بھیجا۔ جلد ہی انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ یہ سب لڑائی کے ارادے سے نہیں آئے۔ مزید تسلی کے لیے انہوں نے چند ایک لوگوں سے چھیڑخانی بھی کی، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ لڑتے ہیں یا نہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تھا کہ اگر یہ جان بوجھ کر چھیڑخانی بھی کریں تو جواب نہیں دینا۔ بہرحال ان لوگوں کو یقین ہو گیا تو واپس جا کر ان لوگوں نے رپورٹ دی کہ وہ لڑائی کے ارادے سے نہیں، عمرے کے ارادے سے آئے ہیں۔ یہ سن کر ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، ہم تو قریش مکہ کے سردار ہیں، یہ اس طرح کیسے آ سکتے ہیں، ہماری تو ناک کٹ جائے گی، ان کو روکو، نہیں آنے دینا انہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے سمجھایا کہ تمہاری اس طرح پوری دنیا کے اندر بے عزتی ہوگی، حرم تو سب کے لیے ہے اور حرم کی بنیاد پر تمہاری روزی روٹی چل رہی ہے، باہر کے لوگ یہاں آتے ہیں، یہ ایک بین الاقوامی شہر ہے، سب لوگ حج عمرے کے لیے ادھر آ سکتے ہیں، تم انہیں کیسے روک سکتے ہو، ایسا کرو گے تو بدنامی ہوگی۔ تمام ڈسکشن کے بعد الٹیمیٹلی انہوں نے عروہ بن مسعود کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا، یہ کہنے کے لیے کہ آپ لوگ واپس چلے جائیں، یعنی اس نے خیمے کے اندر آپ علیہ السلام کو ڈرایا دھمکایا کہ آپ کے یہ سارے ساتھی آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، یا ہو سکتا ہے کہ قریش مکہ آپ کو مار دیں۔ اب اس ظالم کو کیا پتا تھا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اسی دوران جب یہ شخص گفتگو کر رہا تھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کو بہت غصہ آیا کہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منہ پر آ کر یہ دھمکی دے رہا ہے کہ تمہیں تمہارے ساتھی چھوڑ جائیں گے جو تمہارے لیے اتنی قربانیاں کر رہے ہیں، اگر اپنی جان بچانی ہے تو واپس چلے جاؤ۔ اب اتنے گستاخانہ گفتگو کون سن سکتا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سخت غصہ آیا اور اس کو سخت الفاظ کہے، جس کے بارے میں آج کل اس بات کو دلیل بنایا ہوا ہے کہ گستاخانہ رسول کو گالیاں نکالنے کی، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ انہوں نے اس طرح بات کی جو کام وہ کیا کرتے تھے، یعنی وہ اپنے بت لات اور منات کی شرم گاہوں کو چاٹتے تھے، یہ ان کی عبادت کا تصور تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا غصہ آیا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح گستاخانہ گفتگو کر رہے ہو، تم جا کر اپنے لات اور منات کی شرم گاہیں چاٹو جو تم کرتے ہو، وہ تو جو کرتے تھے وہی کرنے کو کہا تھا، اس میں تو گالی کا کوئی عنصر ہی موجود نہیں۔ مغیرہ ابن شعبہ بھی پاس کھڑے ہوئے تھے۔ عروہ ابن مسعود تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی کو ہاتھ لگاتا کہ جس طرح کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بات کرتے ہوئے یا کسی کو مناتے ہوئے داڑھی کو ہاتھ لگاتے ہیں، تو وہ بھی ایسے ہی کر رہا تھا کہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ اپنی تلوار کا دستہ اس کے ہاتھ پر مارتے کہ پیچھے کر گستاخ اپنے ناپاک ہاتھ نبی علیہ السلام کی داڑھی سے پرے کر۔ اسی میں آتا ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق نے اسے جب سخت الفاظ کہے تو اس نے جواب میں کہا کہ میں تمہیں جواب دے سکتا ہوں اس بات کا، لیکن تمہارا مجھ پر احسان ہے اس لیے میں اپنی زبان بند کرتا ہوں، لیکن
लेकिन जब मुगीरा इब्ने शोबा की बात हुई तो उसने उनकी पुरानी गलती जिक्र कर दी कि कहीं उन्होंने चोरी की थी, डाका मारा था, कोई माल वगैरह लूट कर ले आए थे, लेकिन बाद में वो मुसलमान हो गए थे। जब वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस्लाम कबूल करने आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा इस्लाम कबूल है मगर ये माल कबूल नहीं, तो ये जिनका है उनको वापस कर दो। तो इसकी तरफ उसने इशारा किया कि उस वक्त मैंने ही तुम्हें पनाह दी थी जब तुमने लोगों का माल इस तरह लूटा था। यानी इस तरह उसने मुगीरा इब्ने शोबा को जवाब दिया था। इसी दौरान नबी अलैहिस्सलाम खेमे से बाहर तशरीफ लेकर आए। सहाबा कराम चाहते थे कि हम इनको दिखाएं कि हम कितने जानिसार हैं। तो नमाज का वक्त हो गया। नबी अलैहिस्सलाम ने वुजू के लिए पानी मंगवाया। अब वो उर्वा इब्ने मसूद भी वहीं मौजूद था जो कि कुफार की तरफ से इल्ची बनकर आया हुआ था। अब ऐसा हुआ कि नबी अलैहिस्सलाम वुजू कर रहे हैं और सहाबा कराम अपने हाथ नीचे लेकर खड़े हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वुजू का पानी नीचे नहीं गिरने दे रहे। हत्ता कि आप अलैहिस्सलाम ने थूक फेंकी तो वो भी एक सहाबी ने अपने हाथों में लेकर अपने जिस्म पर मल ली। अब जिसको वो पानी नहीं मिल रहा था तो जाहिर है 1500 सहाबा थे तो वो दूसरे सहाबी के गीले हाथों को मलकर अपने चेहरे पर मल लेता। अब वो उर्वा इब्ने मसूद डायरेक्ट तो ये मंजर नहीं देख रहा था बल्कि साइड से बार बार किनखियों से देख रहा था कि ये क्या कर रहे हैं। और ये बात हमें हदीस से पता चली है कि इस्लाम लाने के बाद ये बात खुद उन्होंने रिवायत की। उनके बारे में आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने ईसा इब्ने मरियम को देखना है वो उर्वा इब्ने मसूद को देख ले, वो उनके हम शक्ल हैं कि मैंने इनको शब मिराज में देखा है, घुंघराले बालों वाले। यानी उर्वा इब्ने मसूद बहुत खूबसूरत थे। बहरहाल उन्होंने जब ये मंजर देखा तो अबू सुफियान से जाकर कहा कि खामोशी से यहाँ से वापस चलते हैं कि मैं बड़े बड़े बादशाहों के दरबार में गया हूँ, कैसरो कसरा रोमन एम्पायर के हेड के दरबारों में भी गया हूँ, शाह नजाशी के दरबार में भी गया हूँ। मैंने किसी भी बादशाह की राया को ये ताजीम करते हुए नहीं देखा अपने सरदार की जो आप अलैहिस्सलाम के असहाब करते हैं। अल्लाह की कसम जब वो वुजू करते हैं तो उनका पानी वो नीचे नहीं गिरने देते, उनका थूक मुबारक भी नीचे नहीं गिरने देते। उसके बाद कहा कि अल्लाह की कसम जब नबी अलैहिस्सलाम गुफ्तगू करते हैं तो वो सब इस तरह खामोश हो जाते हैं जैसे उनके सरों पर परिंदे बैठे हुए हैं और अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से बात निकलने की देर होती है वो झपट पड़ते हैं और वुजू का पानी लेने के लिए वो इस तरह की तगोदोद करते हैं गोया अभी लड़ पड़ेंगे आपस में। तो आप लोग इस बंदे को इतना हल्का ना लें, बेहतर है कि इनके साथ मुआहिदा कर लें। अब ये उनके लिए बहुत बड़ी तस्लील थी कि मुआहिदा करने का मतलब था कि उन्होंने मुसलमानों को पावर के तौर पर तस्लीम कर लिया है। अभी तक 3 मरतबा तो वो लोग मारने के लिए आए, गज़ा बदर में, ओहद में और खंदक में, और अब वो पावर में तस्लीम करेंगे तो मुआहिदा करेंगे। इसके लिए उन्होंने सुहेल इब्ने अमर को भेजा जो कि बाद में सहाबी बन गए। उनके 2 बेटे थे, एक बेटा अबू जंदल और दूसरा अब्दुल्ला। सुहेल इब्ने अमर जब आए तो हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि ये आया है तो मतलब अब सुलह हो जाएगी, क्योंकि सुहेल इब्ने अमर समझदार आदमी थे और ऐसा ही हुआ। उसने आकर कहा कि आप हमारे साथ मुआहिदा कर लें। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है। तो कागज और कलम यानी उस वक्त का जो चमड़ा था वो और कलम मंगवाई गई। बुखारी शरीफ में ये अल्फाज मौजूद हैं कि उस चमड़े के ऊपर जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी हुई थी पहला इतराज ही उस पर किया, क्योंकि मुशरिकीन अरब अल्लाह के लिए रहमान और रहीम के लफ्ज को नहीं मानते थे। उसने कहा कि इसकी जगह आप बिस्मिका अल्लाहुम्मा लिखें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को काट कर बिस्मिका अल्लाहुम्मा लिखा गया। फिर उसमें लिखा गया कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह और मुशरिकीन अरब के दरमियान मुआहिदा है। तो उसने कहा कि हम तो आपको अल्लाह का रसूल मानते ही नहीं है, अगर हम आपको अल्लाह का रसूल मानते तो आपके साथ लड़ाई करते हम, तो इसको आप मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला कर दो। सैयदना हजरत अली जो कि आपके कातिब थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि ये काट कर मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला कर दो। तो हजरत अली ने कलम फेंक दी कि या रसूल अल्लाह, मैं तो आपका नाम नहीं काट सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुरा नहीं मनाया और कहा कि अच्छा ठीक है, ये कलम मुझे दे दो, और पूछा कि कहाँ लिखा हुआ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से अपना नाम खुद लिखा। हालांकि आप लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, मगर ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा था कि आपने अपना नाम खुद लिखा, जबकि राइटिंग अच्छी नहीं थी, क्योंकि अगर आपको लिखना आता तो मुशरिकीन अरब कहते कि कुरान मजीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद लिखा है। तो ये भी आपका एक मौजज़ा था। मगर अब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तसल्ली नहीं हो रही थी कि उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, क्या हम सच्चे नहीं हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिल्कुल सच्चे हैं। कि काफिर झूठे नहीं हैं? फरमाया झूठे हैं। फिर कहा या रसूलल्लाह, क्या उनके मक्तूलीन दोज़ख और हमारे मक्तूलीन जन्नत में नहीं हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिल्कुल
बिल्कुल हैं, तो या रसूलल्लाह फिर क्यों हम इनके साथ दब के सुलह कर रहे हैं? क्योंकि इसमें 3 शराइत थी। पहली शर्त ये थी कि अगर कोई काफिर मुसलमान होकर मदीने में आ जाए तो नबी अलैहिस्सलाम पाबंद हैं उसको वापस करने के, लेकिन अगर कोई मुसलमान मक्के में वापस आ गया तो मुशरिकीन अरब उसको वापस नहीं करेंगे। ये दूसरी शर्त थी। अब ये तो वाकई दबकर सुलह करने वाली बात थी। और तीसरी शर्त ये थी कि इस साल आप उम्रा नहीं करेंगे कि हमारी भी इज्जत रह जाए, इस बार आप चले जाएं, बेशक अगले साल आकर कर लें। ये 3 शराइत थी। अब ये तीनों शराइत बज़ाहिर उनकी फेवर में थी। तो जब हजरत उमर ने एतराज किया तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है। बहरहाल हजरत उमर की फिर भी तसल्ली नहीं हुई तो जाकर हजरत अबू बकर सिद्दीक से कहा कि देखेंगे इस तरह सुलह कर ली है। तो हजरत अबू बकर ने हजरत उमर को डांटा और कहा कि वो अल्लाह के रसूल हैं। तो हजरत उमर कहते हैं कि अपने इस मिसबिहेव की वजह से सारी जिंदगी सदका खैरात की है। हालांकि ये मिसबिहेव नहीं था, क्योंकि हजरत उमर बहुत नेक इंसान थे और जानते थे कि नबी का दर्जा क्या है। वो तो आवाज भी ऊंची नहीं करते थे। ये हजरत उमर की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत थी कि इतनी बात भी उन्हें तकलीफ देती थी कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले पर खुश नहीं थे। तो बहरहाल अब ये तीनों शराइत तय पा गईं और ये तीनों बिल्कुल वन साइडेड थी। नबी अलैहिस्सलाम ने इनको कबूल कर लिया। सही बुखारी के अल्फाज है कि नबी अलैहिस्सलाम खैमे से बाहर निकले और सबको बताया कि ये मुआहिदा तय पा गया है, तो सब लोग अपनी यहीं पर कुर्बानियां कर लें। हरम तक जाने की जरूरत नहीं है, अपना हलक करो यानी अपने बाल मुंडवा लो और अपना एहराम भी खोल दो। तो कोई सहाबी भी नहीं उठा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी दफा कहा, तीसरी दफा कहा। ये पहली और आखिरी दफा मौका था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा सहाबा को हुक्म दिया और कोई सहाबी मानने को तैयार नहीं था। यानी वो सब ही इस सुलह पर नाराज थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आदत थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर सफर में अपनी कोई न कोई बीवी साथ लेकर जाते थे, कुरानदाजी करते थे। इस सफर में उम्मे सलमा आपके साथ थी। वो खैमे में बैठी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास आए और फरमाया कि ये सब तो मेरी बात ही नहीं मान रहे, मैंने 3 मरतबा सबको हुक्म दिया है। तो हजरत उम्मे सलमा ने बहुत जबरदस्त मशवरा दिया कि आप इनको छोड़ दें, आप सबसे पहले अपनी कुर्बानी खुद कुर्बान करें, अपना हलक करवाएं और एहराम खोल दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले, अपनी कुर्बानी को कुर्बान किया, हजाम को बुलवाया और सारे हलक करवा दिया और फिर एहराम खोल दिया। तमाम सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो पहले एक सहाबी उठे, फिर दूसरे, फिर तीसरे, करते करते सबने फिर ऐसा ही किया। ऐन मुमकिन है कि सहाबा कराम ने ये सोचा हो कि शायद कोई नया हुक्म नाजिल हो जाए या हमें उनसे लड़ाई करने की इजाजत मिल जाए, क्योंकि सहाबा कराम भी यही चाह रहे थे। तो व्यूअर्स, इस मुआहिदे के मुतालिक मजीद वाक़यात अपनी अगली वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह अपनी फेवर में लिखवाया गया ये मुआहिदा मुशरिकीन अरब के गले पड़ गया और खुद उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर हाथ जोड़कर ये मुआहिदा खत्म किया। तो व्यूअर्स, अल्लाह ताला हमें ईमान की वो मजबूती अता फरमाए कि हालात चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा ईमान कभी न डगमगाए। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इंशाअल्लाह मजीद दिलचस्प मालूमाती और इस्लामी वाक़यात आपके साथ शेयर करती रहूंगी। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी दुआएं और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चलती हूँ, मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।